برطانوی انٹیلیجنس کے 3 سراغ رسان پولیس اسٹیشن کے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نیک بخت اور مشیر کے جانے کے بعد وہ تینوں فرنٹ مین شاہد جبار کے پاس آئے۔ ایک اعلیٰ افسر نے اسے چند کاغذات دکھا کر کہا، تم سے ان کاغذات پر چند سوالات کیے گئے تھے اور تم نے ان کے جوابات اپنے ہاتھ سے لکھے۔ ہمارا خیال ہے تم ان جوابات میں کچھ تبدیلیاں کرنا چاہو گے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، مسٹر نیک بخت میرے لیے ایک وکیل کی خدمات حاصل کریں گے، میں وکیل سے مشورہ کر کے آپ کے سوالات کے جوابات دے سکوں گا۔ انٹیلیجنس افسر بولے، ہم یہاں تمہارے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے نہیں آئے، تم سے اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے تمہیں کسٹڈی میں رکھا گیا ہے، تم سے وہی سوالات کیے جائیں گے جن سے تمہارا تعلق ہے۔ دوسرے سراغ رساں نے کہا، اگر ہم یہ پوچھیں گے کہ تم کب پیدا ہوئے تھے تو تم ہی اپنی تاریخ پیدائش بتاؤ گے، تمہارا وکیل نہیں بتائے گا۔ اس طرح تم ہی بتا سکتے ہو کہ مسٹر نیک بخت کو یہ کیوں نہیں معلوم تھا کہ تم منشیات کے اسمگلر کے لیے کام کرتے ہو۔ فرنٹ مین بولا، میں جواب لکھ چکا ہوں کہ اسمگلر شہزاد خان کے دھندے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ایک سراغ رسان نے کہا، ہم نے شہزاد خان سے بھی اسی طرح تحریری بیان لیا ہے، اس کے بیان کے مطابق تم لندن میں اس کے مال کے سپلائر ہو۔ اس کا گواہ ہمارا ایک جاسوس جیکی رالف بھی ہے۔ تمہاری اور شہزاد خان کی وہ گفتگو بھی ریکارڈ کی گئی ہے جب تم اس سے جیل میں ملاقات کرنے گئے تھے۔ دوسرے سراغ رسان نے کہا، اتنے ثبوت اور گواہ کے باوجود تم یہ کہتے ہو کہ شہزاد خان کے منشیات کے دھندے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، تو پھر کاغذ پر یہی لکھ دو، مگر ایک بات یاد رکھو، تمہارے جوابات میں جتنی سچائی ہوگی اتنی ہی کم سزا ملے گی۔ اعلیٰ افسر نے کہا، میں ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل سے تمہیں یہ تحریری سند دوں گا کہ تم سلطانی گواہ ہو، تمہیں اصلی مجرموں کا مڈل مین بننے پر معافی دی جائے گی، بشرطے کہ تم انیلا مرڈر کیس میں اہم ثبوت اور گواہ پیش کرو۔ وہ بولا، میں انیلا مرڈر کیس کے سلسلے میں کیا کہوں، جبکہ تحریری بیان دے چکا ہوں کہ میں انیلا بانو کو نہیں جانتا۔ سراغ رساں بولا، مسٹر نیک بخت کا بیان ہے کہ وہ اس کی پرسنل سیکرٹری تھی، پچھلے سال یہاں آئی تھی، یہاں تم بھی مسٹر نیک بخت کے ملازم ہو اور ایک ملازم کی حیثیت سے اسے اچھی طرح پہچانتے ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ ایک سراغ رساں نے کہا، اب زبان سے نہ بولو، تحریری بیان دو، جو کچھ کہنا چاہتے ہو اسے لکھو۔ وہ بولا، سوری، میں وکیل سے مشورہ کیے بغیر تحریری بیان نہیں دوں گا۔ سراغ رساں بولا، انیلا کو قتل کرنے والی عورت عدالت میں کہے گی کہ تم نے اسے قتل کروانے کے لیے خاصی رقم دی تھی۔ مسٹر نیک بخت سے سوال کیا جائے گا تو ان کا یہی جواب ہوگا کہ ان کے امریکہ جاتے ہی پتہ نہیں کیوں تم نے اسے قتل کروا دیا، ہو سکتا ہے منشیات کے دھندے میں انیلا بانو تمہارے لیے پرابلم بن گئی ہو۔ دوسرے جاسوس نے کہا، مسٹر نیک بخت ایسے ملازم کے لیے وکیل نہیں دیں گے جو انہیں دھوکہ دے کر منشیات کا دھندا کرتا ہو۔ تیسرے جاسوس نے کہا، ذرا سوچو اور غور کرو، تم ہر پہلو سے گرفت میں آنے والے ہو، مسٹر نیک بخت پر ایک ذرا بھی آنچ نہیں آئے گی۔ وہ پریشان ہو کر بولا، کیا مجھے ٹیلی فون کی سہولت مل سکتی ہے؟ مسٹر نیک بخت سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ افسر نے رسٹ واچ پر دیکھ کر کہا، 40 منٹ کے بعد وہ اسپتال سے انیلا بانو کی لاش دیکھنے جائیں گے، تمہیں بھی وہاں لے جایا جا رہا ہے۔ افسر نے تھانہ انچارج سے کہا کہ وہ شاہد جبار کو اپنی کسٹڈی میں اسپتال تک لے آئیں، وہیں اس قاتل عورت کو بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ تینوں سراغ رساں وہاں سے چلے گئے۔ اسپتال کے مردہ خانے کے قریب ایک کمرے میں انیلا کی لاش تمام متعلقہ افراد کو دکھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ لاشیں سرد مردہ خانوں میں رکھی جاتی ہیں، وہاں سے ایسی جگہ نہیں لے جائی جاتی جہاں اے سی کا مخصوص منفی ٹیمپریچر کم نہ ہو۔ یہ بات کسی کے ذہن میں نہیں آئی کہ انیلا کی لاش اس کمرے میں کیوں لائی جائے گی۔ نیک بخت کا ذہن اس مسئلے میں الجھا ہوا تھا کہ کس طرح اس قتل کا الزام فرنٹ مین شاہد جبار کے سر پر تھوپ دیا جائے۔ پھر دل میں یہ خوف سمایا ہوا تھا کہ وہاں امیر حمزہ پہلی بار اس کے روبرو آنے والا ہے۔ خفیہ ایجنسی والوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ امیر حمزہ وہاں سے زندہ نہیں جا سکے گا، گویا اسپتال کے اس حصے میں گولیاں چل سکتی تھیں، خون خرابہ ہو سکتا تھا، اس بار امیر حمزہ کو مار ڈالنے کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا تھا۔ پولیس والے شاہد جبار کو اس کمرے میں بٹھا کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نیک بخت اپنے مشیر احمد علی کے ساتھ آیا۔ شاہد جبار نے اپنی جگہ سے اٹھ کر سلام کیا۔ نیک بخت نے کہا، میں جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہوں گا کہ اس کا مطلب ہوگا تم پر بھی سلامتی ہو اور تم پر سلامتی نہیں ہونی چاہیے۔ شاہد جبار بولا، سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نیک بخت نے کہا، تم نے آج تک مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی کہ تم منشیات کا دھندا کرتے ہو؟ انٹیلیجنس والوں کے پاس یہ تمام ثبوت موجود ہیں کہ تم یہاں منشیات سپلائی کرتے رہے ہو، شہزاد خان سے بھی ملنے جیل گئے تھے۔ وہ بولا، سر میں انکار نہیں کروں گا، آپ کی خفیہ ایجنسی والے میرے خلاف ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ نیک بخت بولا، خفیہ ایجنسی کی بات نہ کرو، انیلا بانو کو تمہارے اس خفیہ دھندے کا علم ہو گیا تھا، تم نے اس کی زبان بند رکھنے کے لیے اسے قتل کروا دیا۔ فرنٹ مین شاہد بولا، سر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اسے
उसे किस लिए कत्ल किया? नेकबख्त बोला, बकवास मत करो, मैं कैसे जान सकता हूँ जबकि मैं अमेरिका में था। फ्रंटमैन बोला, आप इसीलिए अमेरिका चले गए थे कि? मुशीर ने कहा, खामोश, ये तमाम बातें अदालत में कहो, कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। तुमने एक तरफ नमक हरामी की, अपने मालिक की लाइल्मी में गैर कानूनी धंधा करते रहे, फिर मालिक की पर्सनल सेक्रेटरी को भी कत्ल करवा दिया। एक बोना शख्स कमरे में दाखिल हुआ, एक पुलिस अफसर उसके साथ था। उसने कहा, मिस्टर नेकबख्त, इस कमरे में अनिला बानो से ताल्लुक रखने वालों को आने की इजाजत है, मगर ये शख्स आपसे मिलने के लिए बजिद है। नेकबख्त ने उस 3 फुट के शख्स से पूछा, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? वो बोला, ये बताने के लिए अमीर हमजा आ चुका है। नेकबख्त ने घबरा कर मुशीर को देखा, फिर बोने से पूछा, मिस्टर हमजा कहाँ हैं? वो बोला, पहले आप इन अफसर साहब को रुखसत करें, फिर मुझे बैठने की इजाजत दें, उसके बाद बातें होंगी। नेकबख्त ने पुलिस अफसर से कहा, आपका शुक्रिया, मुझे इनसे कुछ बात करनी है, आप जा सकते हैं। अफसर चला गया। बोने ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, नेकबख्त, आज हम पहली बार रूबरू मिल रहे हैं, मेरा नाम अमीर हमजा है। नेकबख्त ने मुसाफा नहीं किया, नागवारी से बोला, ये क्या मजाक है? अमीर हमजा तुम्हारी तरह एक बालिश्त का होता तो कोई भी उसे जूतों तले कुचल देता। बौना आदमी बोला, तुम्हारे खुफिया हाथ की एजेंसी वाले गवाही देंगे कि मैं वही हूँ, तुम अभी फोन पर पूछ लो। नेकबख्त ने मोबाइल फोन के जरिए राब्ता किया, फिर कहा, मिस्टर टोनी, यहाँ एक बालिश्तिया आया है, खुद को अमीर हमजा कह रहा है, तुम इस कमरे की तरफ नजर रखो जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। दूसरी तरफ से टोनी ने कहा, मैं भी दूसरी मंजिल के वार्ड से आपके कमरे की तरफ देख रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे गिरफ्तार करके मेरे लिबास से एक टीटी और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया है, मैं पुलिस की हिरासत में रहकर बोल रहा हूँ। नेकबख्त ने फोन बंद करके बौने को सोचती हुई नजरों से देखा, फिर दूसरे नंबर डायल किए। राब्ता होने पर पूछा, बड़ी, तुम अफगानिस्तान में थे, तुमने अमीर हमजा को देखा है? क्या उसका कद 3 फुट है? आवाज आई, सर गड़बड़ हो गई है, आप बॉस को इत्तला दें, अमीर हमजा ने मेरा कद 3 फुट से भी कम कर दिया है। मुर्दा खाने के कॉरिडोर में उससे मेरी फाइट हुई थी, मैं बुरी तरह जख्मी हो गया हूँ। पुलिस वालों ने मुझे गिरफ्तार करके मेरे लिबास से असलहा बरामद किया है, ये पुलिस वाले अमीर हमजा के ताउन से हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। नेकबख्त ने फोन बंद करके कहा, अमीर हमजा अस्पताल में मौजूद है, पुलिस वाले उसके ताउन से खुफिया कारिंदों को गिरफ्तार कर रहे हैं। मुशीर ने धीमी आवाज में कहा, बहुत गहरी चालें चली जा रही हैं, हमें अनिला की लाश दिखाने के लिए बड़ी देर से बिठाया गया है, कोई पुलिस और इंटेलिजेंस वाला इधर नहीं आ रहा, यकीनन वो सब अमीर हमजा के साथ मसरूफ हैं। शाहिद जब्बार कहकहा लगाने लगा। नेकबख्त ने गुस्से से कहा, शट अप। वो बोला, गुस्सा ना दिलाओ, अब मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ, तुम्हें गिरगिट की तरह रंग बदलते देख लिया है। अब मैं एक एक बात सच कहूंगा कि तुमने अनिला बानो को कत्ल करवाने की जिम्मेदारी मुझे दी थी और खुद अमेरिका चले गए ताकि तुम पर इस कत्ल का इल्जाम ना आए। नेकबख्त बोला, तुम्हें जो बकवास करना है अदालत में करते रहना, अभी चुप हो जाओ, मुझे समझने दो कि अमीर हमजा क्या कर रहा है। बौने ने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। वो बोला, शट अप। बौना बोला, शट अप कहने से मेरा नाम नहीं बदल जाएगा क्या? जिसका कद छोटा होता है उसका नाम अमीर हमजा नहीं होता। नेकबख्त बोला, तुम्हारे बाप का नाम भी अमीर हमजा नहीं हो सकता। बौना बोला, जाहिर है बाप बेटे का नाम कभी एक नहीं होता। नेकबख्त दांत पीस कर उसे देखने लगा। मुशीर ने कहा, अब आप खामोशी इख्तियार करें, किसी को फोन भी न करें, हो सकता है यहाँ खुफिया माइक नस्ब किए गए हों। उस कमरे में थोड़ी देर खामोशी रही, फिर बौने ने कहा, तुम अपने मुल्क के बहुत बड़े सियासतदान हो, तुम्हारा मुशीर भी बहुत ज़हीन और चालबाज होगा, लेकिन एक बहुत ही मामूली सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। नेकबख्त कुछ कहना चाहता था, मुशीर ने उसके हाथ पर हाथ रख कर कहा, प्लीज इसकी चाल समझें, ये आपको कुछ कहने पर उकसा रहा है। बौने ने कहा, नेकबख्त, आज के बाद उस मुशीर की छुट्टी कर देना, ये तुम्हें एक मामूली बात नहीं समझा रहा कि मुर्दा खानों में लाशों को एक मखसूस ठंडक में रखा जाता है, किसी भी लाश को वहाँ से बाहर लाते ही टेम्परेचर बदल जाता है और उस लाश की फौरन तदफीन न हो तो उसमें ताफुन पैदा हो जाता है। अभी तो उस लाश के सिलसिले में लंबा मुकदमा चलेगा, उसकी तदफीन की फौरी इजाजत नहीं दी जाएगी। फिर तुम लोगों से ये क्यों कहा गया कि लाश की शनाख्त के लिए उसे इस कमरे में लाया जाएगा? नेकबख्त और मुशीर सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। बौने की ये बात उनके दिमागों में चुभने लगी। शाहिद जब्बार ने सर खुजाते हुए कहा, वाकई हमें मुर्दा खाने में ले जाकर उसकी लाश दिखाई जा सकती थी, पर हमें यहाँ क्यों बिठाया गया है? बौने ने कहा, अपने अपने आमाल पर गौर करने के लिए। नेकबख्त ने कहा, क्या है हमारे आमाल? हमने कोई जुर्म नहीं किया। बौने ने कहा, अगर अनिला बानो जिंदा होती तो वो बता सकती थी कि उसे कत्ल करवाने में तुम्हारा हाथ है। लेकिन नेकबख्त, पाकिस्तानी सियासतदानों की बदबख्ती ये है कि उन्हें अक्सर उनके मुशीर ले डूबते हैं। ये मुशीर हजरात आर्जी मफादात हासिल करने की तदाबीर पेश करते हैं, लेकिन ये नहीं समझाते कि वो आगे जाकर डूबने वाले हैं। मुशीर अहमद अली ने कहा, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? वो बोला, इसलिए कि तुमने नेकबख्त को समझाने वाली बात नहीं समझाई। जब शाहिद जब्बार हवालात में ये कह चुका था कि जिस
जैकी राल्फ के जरिए अनिला को कत्ल करवाना चाहता था वो दरअसल जासूस था, तो फिर भी तुम्हारी अक्ल में ये बात नहीं आई कि जैकी राल्फ ने पहली फुर्सत में अनिला बानो की हिफाजत के इंतजामात किए होंगे। उसके बाद खत्म होते ही कमरे का दरवाजा खुला। नेकबख्त, मुशीर अहमद अली और शाहिद जब्बार एकदम से उछल कर खड़े हो गए। खुले हुए दरवाजे पर अनिला बानो खड़ी थी, उसके पीछे एक औरत और जैकी राल्फ भी था। इंटेलिजेंस के दूसरे सुराग रसां एक एक करके अंदर आ रहे थे। अनिला बानो ने शाहिद जब्बार को देखते हुए कहा, तुमने मुझे कत्ल होते देखा था। मैंने टॉयलेट के फर्श पर दम तोड़ते हुए कहा था, एक औरत मेरा पर्स और 10,000 पाउंड ले गई है। शाहिद जब्बार ने कहा, हाँ, मगर न मैंने तुम्हें कत्ल करने की कोशिश की थी, ना तुम्हारे 10,000 पाउंड ले गया था। अनिला के पीछे खड़ी हुई औरत ने आगे आकर एक चाकू दिखाते हुए कहा, मैंने इस चाकू से अनिला को कत्ल किया था। उस औरत ने वो खुला हुआ चाकू अपने सीने में घोंप लिया। चाकू का लंबा फल उसके सीने के अंदर गया, लेकिन दरअसल वो फल चाकू के खोखले दस्ते के अंदर गया था। उस औरत ने दस्ते को सीने से हटाया, फल दस्ते के अंदर से फिर निकल आया। वो बोली, ऐसे चाकू थिएटरों और फिल्मों में इस्तेमाल होते हैं। तुमने अनिला को जिस खून में तरबतर देखा था वो इंसानी नहीं, एक जानवर का था। जैकी राल्फ ने शाहिद जब्बार से कहा, तुमने मुझे अनिला को कत्ल करने की ऑफर दी, मैं उसी दिन तुम्हें गिरफ्तार करवा सकता था, लेकिन असल कातिल तक या कत्ल करवाने वाले तक पहुंचने के लिए ये ड्रामा करना पड़ा। क्या तुम अब सच बोलोगे कि अनिला बानो को कौन कत्ल करवाना चाहता था? शाहिद जब्बार ने नेकबख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये अनिला बानो की इज्जत से खेलने के बाद उससे शादी नहीं करना चाहते थे और ये शादी के लिए बजिद थी। इनसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझसे कहा गया कि ये 3 दिनों तक शादी की बात टाल देने के लिए जरूरी काम का बहाना करके अमेरिका चले जाएंगे। इस दौरान मैं इन्हें कत्ल करवा दूं। नेकबख्त ने गुस्से से कहा, तुम बकवास कर रहे हो। अनिला ने कहा, अगर मैं कत्ल हो जाती तो शाहिद जब्बार का बयान बकवास समझा जाता। मैं एक कत्ल होने वाली तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए जिंदा रह गई हूँ। तुमने दूसरी बार मुझ पर कातिलाना हमला करवाया। अल्लाह ताला मुझे तबई उम्र तक जिंदगी दे रहा है, इसलिए तुम अपने मकसद में नाकाम होते रहते हो। नेकबख्त ने कहा, अनिला, तुम गलत फहमियों में मुब्तला होकर इन तमाम मोहब्बतों को भूल रही हो जो मेरी जात से तुम्हें मिलती रही हैं। मैंने वादा किया था कि अमेरिका से वापस आते ही तुमसे कोर्ट मैरिज करूंगा और अब भी यही कहता हूँ। हम कल ही शादी के लिए कोर्ट मैरिज में दरखास्त देंगे। वो बोली, हाँ, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मुझ पर 2 बार कातिलाना हमले हुए, इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगी। ये हमजा साहब की पेशगोई है कि तुम कानूनी कार्रवाई से बच निकलोगे। इंटेलिजेंस के आला अफसर ने अनिला से कहा, मिस्टर हमजा ने हमसे 1 घंटा पहले कहा था कि नेकबख्त मक्खन से बाल की तरह निकल जाएगा और हम उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकेंगे। आधा घंटा पहले अमरीकी और बरतानवी सिफारती सतह पर मामला तय हो चुके हैं। मिस्टर नेकबख्त के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं होगी कि अनिला बानो पर कातिलाना हमले के वक्त वो अमेरिका में था। अगर अनिला बानो चाहें तो पहले कातिलाना हमले के सिलसिले में पाकिस्तान जाकर कानूनी चाराजोई कर सकती हैं। अनिला बोली, मुझ पर पाकिस्तान में जो हमला हुआ उसका ऐनी शाहिद नहीं है और जब नेकबख्त कुत्ते की मौत मरेगा तो उसका भी कोई ऐनी शाहिद नहीं होगा, लिहाजा इसे भी मेरी तरह तबई उम्र तक जीने के लिए मुझसे शादी करनी होगी। एक सेहतमंद और कदावर शख्स अनिला के पास आकर खड़ा हो गया। नेकबख्त उसे तवज्जो से देखने लगा। जब वो बोला तो नेकबख्त सहम सा गया, क्योंकि वो अमीर हमजा था। इंटेलिजेंस के आला अफसर से कह रहा था, आपने असली मुजरिम तक पहुंचने के लिए बड़ी जहानत से ये ड्रामा प्ले किया था। आप अपने मकसद में कामयाब भी रहे, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि मुजरिम अपने अंजाम को इस तरह नहीं पहुंचेगा जिस तरह हम उसे पहुंचाने वाले हैं। आला अफसर ने कहा, मैं चाहूंगा कि आइंदा यहाँ इंतकामी या किसी भी तरह की गैर कानूनी कार्रवाई न की जाए। अमीर हमजा ने कहा, मैं हमेशा कानून की बालादस्ती कायम रखता हूँ। मैंने पाकिस्तान में भी बड़े बड़े इख्तियारात के हामिल ओहदेदारान को हमेशा ये मौका दिया है कि वो खुद अपना मुहासबा करें। हम नेकबख्त को भी अपना मुहासबा करना सिखा देंगे। अनिला बानो ने आला अफसर से कहा, मैं आपको तहरीरी बयान दे चुकी हूँ कि आइंदा मिस्टर अमीर हमजा के साथ यहाँ महफूज रह सकूं, लेकिन हमें जाने की इजाजत दें। अमीर हमजा ने आला अफसर और दूसरे अफसरान से मुसाफा किया, फिर अनिला के साथ वहाँ से चला गया। एक अफसर ने आगे बढ़कर शाहिद जब्बार को हथकड़ी पहनाते हुए कहा, अनिला मर्डर केस तो सियासत के खाते में चला गया। तुम्हें मनशियात का धंधा करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा रहा है। मिर्जा नेकबख्त और मुशीर अहमद अली को जाने से रोका नहीं गया, लेकिन ये बात दोनों के दिमागों में गूंज रही थी कि नेकबख्त कानून के शिकंजे से निकलने के बाद भी महफूज नहीं है। अनिला ने ऐसी कुव्वत हासिल कर ली थी कि नेकबख्त को मुश्किल तरीन हालात से बचाने वाला खुफिया हाथ भी उसे अमीर हमजा के मुहासबे से न बचा सकेगा। अनिला और अमीर हमजा कार में जा रहे थे। अनिला ड्राइव कर रही थी। अमीर हमजा अकबी आईने में मोहतात नजरों से देखता जा रहा था। अनिला ने पूछा, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, शाहराह
चौराहों को छोड़कर छोटी सड़कों पर चलती रहो, ऐसी सड़कों पर ताक़ुब करने वाले नजर आ सकेंगे। वो उसकी हिदायत के मुताबिक ऐसी सड़कों पर कार चलाने लगी जहां इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थीं। वो बोली, आपने 2 बार नेक बख्त के हमलों से बचाया है, मेरी ये नई जिंदगी आपकी मरहून मिन्नत है। हमजा ने कहा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, ऐसी बातें न करो, मुझे यूं भी नेक बख्त और काशिफ अकबर का मुहासबा करते रहना है। वो बोली, क्या इस तरह मुहासबा करने से कुछ हासिल हो रहा है? हमजा ने कहा, कुछ तो हासिल हो रहा है। काशिफ अकबर को इख्तिदार से महरूम होना पड़ा। सखर में रुकनुद्दीन के साथ मैंने जो रवैया इख्तियार किया था, उसके नतीजे में वो बुरी तरह दहशतज़दा होकर नीम पागल हो गया है। इन लोगों के साथ ऐसा सलूक किया जाता रहेगा तो इन्हें रफ्ता रफ्ता तस्लीम करना पड़ेगा कि वो कानून को खिलौना बनाकर खेलते हैं, फिर भी किसी न किसी तरह सजा पाते ही हैं। अनिला ने कहा, आप बहुत मसरूफ रहते हैं, पता नहीं कब पाकिस्तान चले जाएं, फिर मेरा क्या बनेगा? हमजा ने कहा, इसे दबाव में रखने के लिए मैंने मशवरा दिया है कि इससे शादी कर लो, जायज तौर पर शरीके हयात बनकर इसे अच्छी तरह हैंडल कर सकोगी। इसी असना में मोबाइल फोन का बजर बज उठा। अमीर हमजा ने मोबाइल फोन का एक बटन दबाकर उसे कान से लगाकर कहा, हाँ मैं बोल रहा हूँ, क्या खैरियत है? आवाज आई, जी हाँ, पहले एक गाड़ी आपके ताकुब में थी, हमने साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से उसके एक पहिए को बेकार कर दिया है। वेलिंगटन स्ट्रीट से 10 मिनट पहले एक कार निकली थी, वो बड़ी देर से आपके ताकुब में है, मैं और 10 मिनट तक तस्दीक करूंगा। वो भी दुश्मन की कार हुई तो उसे ताकुब के काबिल नहीं छोड़ा जाएगा। उसने फोन बंद कर दिया। अनिला ने पूछा, क्या ये नेक बख्त के आदमी होंगे? वो बोला, नेक बख्त और उसके आदमी इतने फास्ट नहीं हैं, ये खुफिया हाथ की एजेंसी वाले हैं। वो बोली, ये सांपों की तरह अपने बिल से निकलते चले आ रहे हैं, मालूम होता है आज आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमजा ने कहा, मैं एक मुद्दत के बाद मंजर-ए-आम पर आया हूँ, अभी काशिफ अकबर की एजेंसी वाले बेखबर हैं, वरना वो भी मुझ पर चढ़ दौड़ते। फिर फोन से राब्ता किया गया, दूसरी तरफ से कहा गया, सर हमने दूसरी गाड़ी को भी बेकार कर दिया है। हमजा ने कहा, शाबाश, अब हम डिनर के लिए शेरेटन जा रहे हैं, वहाँ मेरे लिए दूसरी कार पहुँचा दें, दुश्मनों को पता नहीं चलेगा कि मैंने गाड़ी तब्दील की है। उसके बाद तुम लोग भी जाकर आराम करो, गाड़ी तब्दील होने के बाद मैं किसी की नजरों में आए बगैर अपने बंगले में पहुंच जाऊंगा। उसने फोन बंद कर दिया। वो 20 मिनट के बाद शेरेटन होटल के अहाते में पहुंच गए। एक जगह कार पार्क करके वो होटल के अंदर आए। डाइनिंग हॉल में कई औरतें, मर्द, बच्चे और बूढ़े मुख्तलिफ मेजों पर थे। कई मेजें खाली थी। वो दोनों एक मेज के अतराफ में आकर बैठ गए। एक वेटर ने उन्हें खाने का मेन्यू ला कर दिया। अनिला ने पूछा, हमजा साहब आप क्या पसंद करेंगे? हमजा बोला, मैं बहुत कम खाऊंगा, तुम कुछ भी मंगवा लो, वैसे तुम्हारे खानों का इंतखाब अच्छा है, आज तुम्हारी पसंद का लंच भी बहुत अच्छा था। अनिला ने खाने का ऑर्डर दिया, फिर वेटर के जाने के बाद कहा, क्या मैं जाती सा सवाल करूं? हमजा बोला, क्या पूछना चाहती हो? वो बोली, क्या आप तन्हा जिंदगी गुजार रहे हैं या कहीं बीवी बच्चे हैं? अमीर हमजा ने कहा, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, जिंदगी में एक लड़की पसंद आई थी, वो भी मेरी शरीके हयात बनना चाहती थी। उन्हीं दिनों मैं अफगानिस्तान गया, खुफिया हाथ की एजेंसी वाले मेरी जान के दुश्मन बन गए। उनके आलाकार ने रात की तारीकी में किसी और को हलाक करके उसे पहाड़ की बुलंदी से पस्ती की तरफ फेंक दिया। मुझे कुछ अरसे रूपोश रहना पड़ा ताकि दुश्मनों को मेरी मौत का यकीन आ जाए। अनिला ने पूछा, फिर तो आप पाकिस्तान वापस आए होंगे और अपनी पसंद की शादी की होगी? अमीर हमजा बोला, नहीं, जिससे मैं शादी करना चाहता था उसने मुझे मुर्दा समझकर दूसरे से शादी कर ली। अनिला बोली, दुनिया में एक लड़की तो नहीं है? हमजा ने कहा, अनिला, मेरी मौजूदा जिंदगी में किसी बीवी बच्चे की गुंजाइश नहीं है, अभी तुम्हारे साथ हूँ, कल सुबह अपने बिस्तर पर मुर्दा पाया जा सकता हूँ। मैं हमेशा दुश्मनों पर गालिब नहीं आ सकता, कभी दुश्मन भी गालिब आ सकते हैं। फिर मैं किसी को आज बीवी बनाकर कल उसे बेवा क्यों बनाऊं? अनिला बोली, अगर कोई आपकी शख्सियत से मुतासिर होकर बेवगी की परवाह न करे, आपके साथ जितनी जिंदगी मिले उसे गुजारना चाहे तो? अमीर हमजा बोला, तो मैं सख्ती से इनकार कर दूंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अनिला बोली, अगर कोई गर्लफ्रेंड बनकर रहना चाहे तो? अमीर हमजा ने कहा, मेरी खुफिया रिहाइश गाह का इल्म किसी को नहीं होता, किसी को गर्लफ्रेंड बनाने का मतलब ये होगा कि वो मेरी रिहाइश गाह से वाकिफ हो जाएगी और मैं किसी की रिहाइश गाह में जाकर वक्त नहीं गुजारता। अनिला बोली, लेकिन आज आपने कहा है कि हमारे लिए एक बंगले का इंतजाम हो चुका है। अमीर हमजा बोला, तुमने पुलिस वालों को तहरीरी बयान दिया है कि मेरे साथ महफूज रहोगी, इसलिए मैंने उनके सामने यही कहा है कि हमारे लिए एक बंगले का इंतजाम हो चुका है, वरना वो बंगला सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाकर अपनी खुफिया रिहाइश गाह में चला जाऊंगा। अनिला कुछ मायूस हो गई। वेटर मेज पर खाने की डिशें लाकर रखने लगा। अनिला के ठीक पीछे वाली मेज पर मैं मुराद चंगेजी के साथ बैठा हुआ था। चंगेजी और अनिला की पुश्त एक दूसरे की तरफ थी। उन कुर्सियों के दरमियान इतना फासला था कि चंगेजी बआसानी उनकी गुफ्तगू सुन सकता था। अमीर हमजा मेज की दूसरी तरफ था। उसकी गुफ्तगू साफ तौर पर सुनाई दे रही थी, फिर भी उसके मुंह से अफगानिस्तान का जिक्र सुनकर चंगेजी को यकीन हो गया कि वही कैप्टन अमीर हमजा है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।